وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. سٹیزنز ہیں وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب تک جو ہے وہ 4.25 لاکھ کے قریب جو ہے پنجاب بھر میں ہم اپنے شہریوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک NCOC کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم سینئر سٹیزن اور متعلقہ ایج گروپ کے مطابق ویکسینیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا میڈیا کے ساتھ کام کرنے والا کیمرہ مین ہے، فوٹوگرافر ہے، جو ہمارے رپورٹرز ہیں یا میڈیا میں کسی بھی طرح فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو وہ ویکسین ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے SOPs جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ طے کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہتی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ 1.5 ارب کی ویکسین خود سے صوبہ پنجاب کے بجٹ سے خریدنے جا رہی ہے. اس 1.5 ارب کی ویکسین کو ہم صوبے بھر کے جو محاذ پہ لڑنے والے سپاہی ہیں، ہمارے اس میں میڈیا سب سے پہلی ترجیح اور پہلی لسٹ میں ہے، پھر ہماری انتظامیہ ہے، پھر ہمارے تمام جو سول سوسائٹی کے افراد ہیں جو آگے آنے والے رمضان کے اندر ہم نے ان کو نان گورنمنٹل اور گورنمنٹل پارٹنرشپ کے ساتھ اکٹھا کر کے رمضان بازاروں میں اور سہولت بازاروں میں ان کی خدمات لینی ہے. تو لہٰذا 1.5 ارب کی جو ویکسین وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب خریدنے جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ترجیحات ہم طے کریں. اس وقت جو میڈیا ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے بازو ہیں اور اس جنگ میں سب سے اہم ترین کمانڈر ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس ترجیح میں شامل کیوں نہیں کیا گیا. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو رول ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں گے، اون کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. دوسری بات جو کرونا کے حوالے سے پنجاب بھر میں انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس فگرز ہیں اس کے مطابق جو منڈے کی فگر ہوتی ہیں وہ یوزلی تھوڑی لو سائڈ پہ اس لیے جاتی ہیں کہ سنڈے کی وجہ سے، چھٹی کی وجہ سے وہ پراپر ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوتا. لیکن جو اموات ہے وہ آج بھی 15 اموات جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئی ہیں، اور اوورآل پنجاب کے اندر جو کورونا کا پھیلاؤ ہے اس میں ہمارے جو کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ ایک دن میں بھی 2275 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. یہ تعداد جو ہے وہ پنجاب کے اندر بڑھ کے اس وقت تک 2,33,343 ہو گئی ہے، اور صرف لاہور کے اندر ایک دن میں 1362 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس کے ساتھ فیصل آباد میں 141 کیسز ایک دن میں سامنے آئے ہیں. آپ کے راولپنڈی کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 92 کیسز ایک دن میں سامنے آئے ہیں. اس کے ساتھ سیالکوٹ جہاں ضمنی الیکشن اناؤنس ہوا ہے وہاں 60 کیسز سامنے آئے ہیں. اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کے اندر جو آپ کا انک پیڈ ہوتا ہے، جو تھم لگاتے ہیں آپ تھم امپریشن کے لیے، ہر ایک اسی ایک انک پیڈ کے اوپر اپنا کانٹیکٹ اسٹیبلش کرتا ہے. تو وہ الیکشن جو ہے وہ کس طرح کرونا کو
स्प्रेड करने का बायस नहीं बनेगा। ये एक अलग बहस है और इसमें हम इलेक्शन कमीशन से ये चाहते हैं कि ये कैसा इलेक्शन है जिसके अंदर इस वक्त ना कैंडिडेट जलसा कर सकता है, ना कैंडिडेट को रैली निकाल सकता है, ना कैंडिडेट जो है वो कॉर्नर मीटिंग कर सकता है, ना कैंडिडेट अपनी कैंपेन कर सकता है और वोटर तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकता। तो इलेक्शन वाले दिन वो वोट का जो स्टैंप लगाने का तरीकाकार है और जो बैलेट पेपर देने का तरीकाकार है वो सारे कोरोना के SOPs की वायलेशन में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को उस इलेक्शन में हम कैसे यकीनी बनाएंगे और क्या तरीकाकार होगा, उसकी वजह से पोलिंग स्लो होगी और जो मेजॉरिटी हमारे वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इस इलेक्शन के हवाले से एक और चैलेंज है जिससे निबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमत पंजाब पुरज़म है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक इस हवाले से हमें आज सरे-नौ अपनी तरजीहात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आज की अहम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पंजाब भर के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जहां हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डेवलपमेंट पैकेज देने जा रहे हैं, खुद ग्रास रूट लेवल पे जाके हर ज़िले में 100 जो इस वक्त हमारी 146 तहसीलें और 36 के करीब जो अजला हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उन ज़िलों की डेवलपमेंट के लिए खुद जो है अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में, तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में अवाम को यकसा तरक्की का जो हक है उनकी तहलीस पे पहुंचाने जा रहे हैं। और जो हमारे सियासी इस वक्त मुखालफीन हैं उनकी नींदें हराम हो गई हैं। आपने देखा कि PDM को जो मसनूई सांसों पे जिंदा रखने की कोशिश की गई उसका अल्टीमेटली रूह परवाज कर चुकी है और एक मुर्दा जिस्म जो है वो कंधों पे उठा के PDM का वो जाली राजकुमारी जो है वो मार्केट में फिर रही है और एक नया डंडोरा और एक नया वतीरा जो डॉक्टर अदनान की शक्ल में इस वक्त एक पुरस्कार बीमारी जिसका अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ट्विटर तक दोबारा वो महदूद हुई है और उनकी जो रूनमाई है आज कई दिन जो है वो गुजर गया, किसी ने नहीं देखी है। तो मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर अदनान आपका जो साबका माजी का रिकॉर्ड है वो पुरस्कार बीमारियों में हेरा फेरी करके रिपोर्टें फर्ज करा के प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव के माहिर तो आप साबित हो गए। अब जाली राजकुमारी की कौन सी ऐसी नई बीमारी इजाद करने आप पाकिस्तान आए हैं जिसके तहत सबसे पहले उनकी आपने गोशा नशीनी इख्तियार कराई है और आजकल सिर्फ वो सोशल मीडिया के जरिए अपना गम गलत करने में मसरूफ़ अमल है। आज सेनेट के अंदर भी आपने देखा है कि जो एक दूसरे का दर्द बांटने निकले थे, एक दफा फिर सेनेट के फ्लोर के ऊपर उन्होंने एक दूसरे से राहें जुदा की हैं और आज़ाद अपोजिशन का नारा जो एक नौ मौलूद सेनेटर है जिनका इससे पहले ना किसी ने को पार्लिमानी सिस्टम में नाम सुना, ना कभी किसी ने उनका पार्लिमानी
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर किसी जगह रोल देखा, वो अचानक जिले सुबहानी के वकील के तौर पे तो जाने जाते थे, वो पस पर्दा शाही खानदान के एक खिदमत गुजार के तौर पे तो उनका तारुफ था, लेकिन सेनेट के अंदर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का जो जिला का एक बयान था और हक थी, आज उन्होंने ये दरखास्त दी कि आज़ाद अपोजिशन जो है वो सेनेट के अंदर काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि PMLN जो है उसने अपना टाइटल छोड़ दिया, अपना लेबल छोड़ दिया, जिले सुबहानी का नाम लेना, PMLN का नाम लेना उन्हें भी अब बोझ लगने लग गया और उन्होंने सेनेट में आज़ाद होने का दावा कर दिया। तो लिहाजा इमरान खान की क़यादत में ये पाकिस्तान जो है आगे बढ़ रहा है। इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उनको वो आइनी खुद मुख्तारी और फिर मुआशी खुद मुख्तारी जो आज देने जा रहे हैं, और वहाँ उनके जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तरक्याती पैकेज हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये टोला जो है ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की स्क्रीनों में जिंदा रहेगा और इमरान खान, उस्मान बुज़दार और PTI की हुकूमत जो है वो अवाम के दिलों में जिंदा रहेगी। और हमारे मंसूबे, हमारी फलाई जो इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान को और सूबा पंजाब को ख़ुसूसन 12 करोड़ जो अवाम है उनको आगे बढ़ने में, पाकिस्तान को और पंजाब को तरक्की और खुशहाली के धारे में शामिल रखने के लिए मामन साबित होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। मैडम ये बताइएगा कि आपने लाहौर में ऐलान किया है कि पंजाब में जो कोरोना वैक्सीनेशन है इसके लिए जो 80 और 80+ जो बुजुर्ग हैं उनके घरों तक वो जाके वैक्सीनेशन की जाएगी, लेकिन रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इस फैसले से अभी तक कतारें इलाज नहीं कर रही है और रावलपिंडी में ये अभी तक लागू नहीं हो सका। फिलहाल आपने लाहौर तक लेकिन जब कोई आप लाहौर चूँकि दारुल खिलाफा है सूबे का, और लाहौर के अंदर जो अनाउंसमेंट होती है वो पॉलिसी होती है उस सूबे की हुकूमत की, जो हर ज़िले तक उस आवाज़ को और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना होता है। जो वज़ीर आला पंजाब ने उस्मान बुज़दार साहब ने जिस एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया है उसका मकसद सीनियर सिटीजन्स और डिसेबल्ड हमारे जो शहरी हैं उनको एक कॉल पे जो ऐप क्रिएट की गई उस पे रजिस्टर होके बताना है कि मुझे फलां जगह से पिक किया जाए और सेंटर में ला के उसको वैक्सीनेट किया जाए। अभी मेरी हेल्थ अथॉरिटी से बात हुई है, मैंने इनसे पूछा है कि इस सेंटर के अंदर जो हमारे डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन आए हैं उनको क्या एम्बुलेंस की फैसिलिटी दस्तयाब थी। यकीनन ये उस हवाले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं इनको CO हेल्थ मेरे साथ बैठी हैं, मैं इनको फिलफौर ये हदायत देती हूँ कि वो वज़ीर आला की जो अमली सोच है उसकी अक्कासी करते हुए यहाँ सीनियर सिटीज़न का हर हाल में ख्याल रखें। उन एम्बुलेंसेस को हमने कोई शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल नहीं करना, वो एम्बुलेंस इन्हीं लोगों के लिए ली गई हैं और वो एम्बुलेंसेस इन लोगों का हक है उन पे जाना और ख़ुसूसन डिसेबल्ड का। तो अगर कहीं कोताही हुई है तो उसको हम फिर देख लेंगे। आइंदा इस किसी भी हेल्थ ऑफिसर के पास, अथॉरिटी के पास उस कोताही की कोई गुंजाइश नहीं जो सूबे के वज़ीर आला के अज़म के आगे रुकावटें डाले या सूबे की किसी पॉलिसी को ना माने और उस पे फुल स्पिरिट से काम ना करे, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैडम ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत हो या उत्तर पाकिस्तान हो, माफिया के खिलाफ लड़ रही है,
पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि 85 रुपये फी किलो चीनी रेट मुकर्रर किया, लेकिन दूसरी जानिब मिल्स मालकान ने इसको देने से इनकार कर दिया। तो इस हवाले से ये बताइएगा, आगे रमज़ान आ रहा है तो सस्ते बाज़ारों में क्या रेट आप रखेंगे और इस पर अमल दरामद करने के लिए किस तरह, क्या कौन से कवानीन जिला इंतजामिया को क्या हिदायत देंगे पूरे पंजाब में, ये तो मैं बता दूँ। ये अहम तरीन सवाल है जी, क्योंकि इस वक्त जो है वो चीनी की फराहमी और चीनी के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है उस चीनी को इंपोर्ट करने जा रही है, और यकीनन यहाँ जब हम इंपोर्ट करेंगे तो जो लोकल मिल मालकान हैं उनकी ब्लैक मेलिंग से हम बच जाएंगे। लेकिन चूँकि इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। जो मिल मालकान चीनी मार्केट में लाने से कतरा रहे हैं और मसनूई बहरान पैदा करके कीमतों को बढ़ाना चाहते हैं, हुकूमत ने उनसे आने हाथों से निपटने का फैसला कर लिया हुआ है। जो 313 सस्ते बाज़ार और सहूलत बाज़ार हुकूमत पंजाब कायम करने जा रही है, उन 313 बाज़ारों को हम एक सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के ज़रिए मॉनिटर करने जा रहे हैं। सहूलत बाज़ार अथॉरिटी जो है वो इस बात का जायज़ा लिया करेगी डेली बेसिस पे कि मार्केट में कौन सी चीज़ शॉर्ट है और वो मसनूई शॉर्टेज की गई है या हकीकत में उसकी डिमांड बढ़ी है और सप्लाई चेन टूटी है, और बर वक्त उस पर फैसले होंगे और किसी को मुनाफाखोर को और ज़हीरा अंदोज को अवाम की मुश्किलात को बढ़ाने की इंतहाई घटिया हरबा अपनाया गया और ANF के ज़रिए से अपने गोदाम में पड़ी हुई 15 किलो ड्रग्स हीरोइन जो है वो मेरे ऊपर डाली गई। और अगले दिन एक मेजर जनरल ने यूनिफॉर्म पहन के, अब ये कौम को देखना चाहिए कि यूनिफॉर्म को या अदारों की इज़्ज़त में हरफ हम लाते हैं या ये गवर्नमेंट लाती है जो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ हर चीज़ को इस्तेमाल करती है। और एक मिनिस्टर शहरयार अफरीदी ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि जी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है, और राना साहब खुद हीरोइन जो है वो बैग से निकाल के पूरी दुनिया के सामने कहा कि जी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है, और राना साहब खुद हीरोइन जो है वो बैग से निकाल के उन्होंने जो है वो पेश की है, और हमारे पास वीडियो मौजूद है। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं, वो वीडियो जो है वो पूरा मीडिया इनसे मांग रहा है, पूरी दुनिया इनसे पूछ रही है, बैनुल-अक़वामी अदारे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इनसे पूछ रही है, लेकिन वो कोई जो है वो उसका अता पता नहीं है। उस दिन से मेरी पूरी फैमिली के जो एसेट्स हैं उन्होंने फ्रीज़ किए, मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए हुए हैं, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम की आग बुझाने के लिए। और कहा गया कि जनाब ये सारा जो है ये नारकोटिक्स की जो है वो प्रोसीड से लिया गया है। उसके बाद जब मुझे हाई कोर्ट से उस एक बेबुनियाद मुकदमे में ज़मानत मिली, तो फिर दोबारा से जो है वो एसिड्स बियॉन्ड मीन का केस शुरू कर दिया गया। अब 1.5 साल हो गया एसिड बियॉन्ड मीन केस का। मेरे खिलाफ 1 रुपए की कोई प्रॉपर्टी नहीं निकाल सके कि जो बेनामी हो, जिसे मैंने छुपाया हो। कोई 1 रुपए का कोई फेक अकाउंट नहीं निकाल सके। कोई मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं ला सके कि मैंने किसी से रिश्वत लेनी तो बहुत दूर की बात है, मैंने किसी से मांगी भी हो। लेकिन इसके बावजूद नैब के ऑफिसर हमें ये कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से बड़ा प्रेशर है, हम केस ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन फिर जो है वो उसी प्रेशर के तहत जो है वो फिर वारंट्स ऑफ अरेस्ट जारी करते हैं। आज हाई कोर्ट ने मेरे केस में जो है वो इंसाफ फराहम किया है, बाकी केसेस में भी जो है वो इंसाफ फराहम हुआ है अदलिया की तरफ से। और जो हमारे कायदीन मियाँ शहबाज शरीफ साहब
اور خواجہ آصف صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو بھی جو ہے وہ انصاف ملے گا، اور یہ حکومتی ٹولہ جو اپنے انتقام کی آگ میں نہ صرف خود جل رہا ہے بلکہ یہ پورے ملک کو جلا رہا ہے، پوری قوم کو جلا رہا ہے، ملک تباہ کر دیا ہے، ملک کی اکانومی تباہ کر دی ہے، اور ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ IMF کے پاس جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیا ہے، اور اس ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، اور صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ ہم نے انتقام لینا ہے۔ یہ انتقام جو ہے یہ جو لوگ ملک سے اور قوم سے لینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد جو ہے یہ خود انتقام کا جو ہے وہ شکار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک اور قوم کو جو ہے وہ ان سے نجات دلائے گا۔ بتائیے گا کہ کیا یہ خان صاحب نے پارلیمنٹ بل کی بات کی اور اپوزیشن سے بات کرنے کی انہوں نے یہ بات کی ہے، کیا شہباز شریف اگر باہر آتے ہیں تو وہ حکومت سے اس حوالے سے قومی اسمبلی میں جو پارلیمنٹ بل ہے ریفارم بل اس حوالے سے حکومت سے بات کریں گے، جبکہ دوسری جانب پیپل پارٹی جو ہے وہ اب پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ مل رہی ہے؟ جی، پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ ہے کہ اس جعلی اور ناجائز حکومت جو کہ صرف اور صرف انتقام کے لیے قائم ہے اور انتقام لے رہی ہے ملک سے بھی، قوم سے بھی، اپوزیشن سے بھی، اس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ رانا صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ PDM کا کیا فیوچر ہوگا اور لانگ مارچ کے حوالے سے کیا ہوگا، اور مریم نواز دیکھیں جی، PDM کا فیوچر اس حد تک